Then we saw two more page replacement algorithms, which were based on the concept of counting. So here we used to count the number of pages which are referenced, so least frequently used, most frequently used. After that, we talked about the various concepts which are related to allocation of frames. Here we saw two different strategies. First is the equal allocation and second is the proportional allocation. And priority allocation is another important criteria that we used to allocate various frames. Then this is important concept, global versus local allocation. So ये भी मैंने आप लोगों से discuss किया था. Whenever a new page has to swap in into the main memory. So in the case of local replacement, वो particular page अपने ही process के किसी और page को replace करेगा. But in the case of global replacement, that particular page of a particular process can replace the page of any other process also. So in that particular case, it can replace any frame. But in the case of local replacement, the page is restricted to replace the page of its own process only. And the last topic which we discussed in the last lecture was thrashing. So thrashing में मैंने आपको discuss किया था, अगर किसी भी process के पास enough number of frames नहीं है, so in that particular case page fault rate बहुत high हो जाता है. And page fault rate high हो जाएगा तो operating system जो overall है वो rather than process execution swap in और swap out के काम में ही लगा रहेगा. So that is a very critical situation for the operating system. And basically here मैंने आपको एक example दिया था. If a process is having 10 pages and out of 10 pages it is mandatory that एक time पर हमारे 5 pages उस मेन मेमोरी में होने चाहिए, लेकिन उस पर्टिकुलर प्रोसेस को ओनली 3 फ्रेम्स आर एलोकेटेड. सो मैक्सिमम एक टाइम पर 3 ही पेजेस एलोकेट हो सकेंगे. सो उस केस में थ्रैशिंग विल अकर. बार बार ऑपरेटिंग सिस्टम को, सीपीयू को बाकी दोनों पेजेस की रिक्वायरमेंट होगी. सो अकॉर्डिंग टू दैट page fault will be there and that will be a purely overhead for the system. So I think this was the last slide which I discussed. So here degree of multi-programming is directly related with CPU utilization. So basically operating system monitors the CPU utilization time to time, and if the CPU is idle, in that particular case, we used to increase the degree of multi-programming. So degree of multi-programming means the number of processes in the RAM. So as long as we increase the degree of multi-programming, CPU utilization increases. But just because of this degree of multi-programming, एक ऐसी थ्रेशोल्ड वैल्यू आ जाएगी जहां पर हमारे पास इतने पेज फॉल्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे दैट एकदम से हमारी CPU यूटिलाइजेशन ड्रॉप होनी स्टार्ट हो जाएगी. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ थ्रैशिंग एंड दिस इज हाउ the CPU utilization and degree of multi-programming is related. So we have to be concerned regarding how many processes should be there in the RAM so that thrashing won't occur. So basically purpose क्या है, वर्चुअल मेमोरी के कंसेप्ट में, डिमांड पेजिंग के कंसेप्ट में हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज तो कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस को हम रैम में लेके आ रहे हैं, लेकिन एंटायर प्रोसेस नहीं होता, कुछ पेजेस होते हैं. सो जितने ज़्यादा हम प्रोसेसेस बढ़ाते जाएंगे उतने ही पर्टिकुलर हर पेज के जो प्रोसेस के जो पेजेस हैं वो कम होते जाएंगे, और अगर पेजेस कम होंगे तो डेफिनेटली पेज फॉल्ट इंक्रीज होता जाएगा. सो दिस इज द ओवरऑल सिस्टम which I have explained you. So today we have to discuss the solutions of thrashing. So thrashing को हम कैसे control कर सकते हैं, reduce कर सकते हैं या फिर prevent कर सकते हैं. So there are two different methods to minimize thrashing, or we can say to prevent thrashing. Very first method is known as working set model, and working set model is based on the concept of locality model. And second way of preventing this thrashing is known as page fault frequency. So these two topics I'm just going to discuss with you. So with this, our chapter 9 would be completed.
सो बेसिकली लास्ट लेक्चर में थ्रेशिंग की बात की. सो थ्रेशिंग नहीं होनी चाहिए हमारे सिस्टम में. सो थ्रेशिंग को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं. उसके लिए हमारे पास दो अलग अलग मैथड्स हैं. सो फर्स्ट इज नोन एज वर्किंग सेट मॉडल एंड सेकेंड इज नोन एज page fault frequency. So I'm just discussing the very first model. So first of all, एक हमारे पास कंसेप्ट होता है लोकेलिटी का. सो लोकेलिटी मॉडल. सो लोकेलिटी बेसिकली क्या है? लोकेलिटी इज अ सेट ऑफ पेजेस दैट आर एक्टिवली यूज्ड टुगेदर. सो जब तक हमें लोकेलिटी का मतलब नहीं क्लियर होगा तब हम वर्किंग सेट मॉडल को नहीं समझ पाएंगे. सो लोकेलिटी सिंपली मीन्स सेट ऑफ पेजेस that are actively used together. So what is the overall concept? So जैसे ही process की execution start होती है, suppose if a process is having 10 pages, so starting में हो सकता है out of those 10 pages 4 pages are required all together actively in the main memory. So उन 10 में से 4 के 4 pages हमारे मेन मेमोरी के अंदर होने चाहिए, तभी वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा. आफ्टर सम टाइम नेक्स्ट 4 पेजेस में बी रिक्वायर्ड ऑल टुगेदर एक्टिवली. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लोकेलिटी. सो लोकेलिटी क्या है? उन पेजेस के हम सेट को लोकेलिटी बोलते हैं जो एक्टिवली यूज्ड टुगेदर होंगे, जो एक साथ इकट्ठे मेन मेमोरी में होने चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूशन. तो अगर मेरे पास 4 पेजेस की रिक्वायरमेंट है, उन 4 में से अगर 3 ही अवेलेबल हैं या 2 ही मेन मेमोरी में है, सो इन दैट पर्टिकुलर केस प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा. सो दैट इज द ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ लोकेलिटी मॉडल. सो बेसिकली विद दिस कंसेप्ट हम मिनिमाइज कर सकते हैं थ्रेशिंग को. सबसे पहले एक सिंपल सा मेथड है. इंस्टेड ऑफ यूजिंग द ग्लोबल पेज रिप्लेसमेंट, हम लोकल पेज रिप्लेसमेंट को या प्रायोरिटी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम को यूज करें. तो भाई लोकल पेज रिप्लेसमेंट क्या करेगा? जब भी कोई नया पेज मेन मेमोरी में आएगा तो वो अपने ही प्रोसेस के किसी और पेज को रिप्लेस करेगा. अगर हम ग्लोबल पेज रिप्लेसमेंट स्टार्ट कर देंगे तो वो बाकी सारे प्रोसेसेस के भी पेजेस को मिनिमाइज करना स्टार्ट कर देगा, तो बाकी प्रोसेसेस के लिए जो पेज फॉल्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा. सो दिस इज द फर्स्ट method or first technique to minimize the effect of thrashing. We will always use the concept of local page replacement, where any page who is coming into the RAM will always replace the page of its own process, not of any other process. देन लोकेलिटी का कंसेप्ट आ जाएगा. लोकेलिटी हम किसे बोल रहे हैं? लोकेलिटी इज सेट ऑफ पेजेस दैट आर एक्टिवली यूज्ड टुगेदर. सो मैंने आपको भी एग्जांपल दिया. अगर किसी प्रोसेस के 10 पेज हैं और स्टार्टिंग में अगर रिक्वायरमेंट है कि उस 10 में से 4 पेजेस ऐसे हैं जो हमेशा एक साथ रैम में होने चाहिए, सो उन 4 पेजेस के सेट को हम क्या बोलेंगे? लोकेलिटी. सिमिलरली हो सकता है कि आफ्टर सम टाइम कोई और 2 पेजेस हो उस प्रोसेस के जो एक साथ मैंडेटरी है रैम में होने चाहिए, तभी वो प्रोसेस आगे फर्दर एग्जीक्यूट होगा. देन लास्ट में जब प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है तब उन 10 में से कोई 3 पेजेस actively must be used together. So these are known as locality. So process जैसे जैसे एग्जीक्यूट होता रहता है, so process migrates from one locality to another. So हो सकता है कि स्टार्टिंग में 10 में से 4 पेजेस होने चाहिए एक्टिवली, कुछ टाइम के बाद कोई और 3 पेजेस एक्टिवली हमारे पास रैम में होने चाहिए एंड लोकेलिटीज में ओवरलैप. सो यू कैन सी दिस पर्टिकुलर डायग्राम. सो यहाँ पर हमारे पास हॉरिजॉन्टल वे में हमारे पास एग्जीक्यूशन टाइम गिवन है और वर्टिकल उस पर हमें पेज नंबर्स गिवन है. तो आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे ही हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग में हमारे पास पेज नंबर 18 से पेज नंबर 24 तक के सारे पेजेस हमारे पास एक साथ रैम में अवेलेबल होने चाहिए, तभी ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा. जबकि इनिशियली हमें पेज नंबर 24 से 29 तक की रिक्वायरमेंट नहीं है. ये वाले पेजेस एक्टिवली कब इकट्ठे होने चाहिए? व्हेन द प्रोसेस इज अबाउट टू complete its execution. So this is the picture which is just stating us the concept of locality. So locality basically simply means जैसे जैसे प्रोसेस की एग्जीक्यूशन होती रहती है तो टाइम के अकॉर्डिंग हमारे पास डिफरेंट पेजेस यानी कि लोकेलिटी चेंज होती रहती है. स्टार्टिंग में आप देख सकते हो पेज नंबर 18 से 24 हमारे पास एक साथ ये सारे पेजेस मेन मेमोरी में होने चाहिए, जबकि मैं इस टाइम पे आके बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास पेज नंबर 24 से 29 तक सारे पेजेस ऑल टुगेदर मस्ट बी एक्टिवली इन द रैम. देन अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो हमारे पास कुछ
ये वाले पेजेस भी रैम में होने चाहिए। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लोकेलिटी मॉडल एंड लोकेलिटीज में ओवरलैप। सो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए सारी की सारी नंबर ऑफ पेजेस की रिक्वायरमेंट हो, तो लोकेलिटीज हमारी ओवरलैप भी हो सकती हैं। सो बेसिकली लोकेलिटी मॉडल का कंसेप्ट यही है कि एज अ प्रोसेस एग्जीक्यूट्स इट मूव्स फ्रॉम लोकेलिटी टू लोकेलिटी, and generally a program or a process is composed of several different localities that may overlap. And the reason of thrashing is that if the sum of size of all the localities is greater than the total memory size, तो अगर मेरे number of frames से ज़्यादा मेरे साइज ऑफ लोकेलिटी हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ पेजेस, एक्टिवली यूज्ड पेजेस जितने चाहिए, सपोज एक प्रोसेस को 3 ही फ्रेम्स एलोकेटेड हैं लेकिन लोकेलिटी 5 है, यानी कि एक टाइम पर 5 पेजेस होने चाहिए रैम में, सो दैट इज डेफिनेटली द केस ऑफ थ्रैशिंग. नाउ वर्किंग सेट मॉडल इज one of the way to prevent the concept of thrashing, and this working set model is based on the concept of locality model. And here we will use a parameter which is represented by delta, and delta will define the working set window. So basically the concept is known as working set, and here if a page is in active use it will be in working set. If it is no longer being used it will drop from the वर्किंग सेट. सो वर्किंग सेट के अंदर हमारे वही वाले पेजेस होने चाहिए जो हमारे एक साथ इकट्ठे एक्टिवली यूज्ड होने चाहिए, और अगर कोई ऐसा पेज नहीं है तो हम उसको ड्रॉप कर देंगे वर्किंग सेट से. तो यहाँ पर हमें एक एग्जांपल गिवन है. सपोज दीज आर द डिफरेंट पेजेस विच विल बी यूज्ड. सो इस एग्जांपल में अगर हम डेल्टा की वैल्यू 10 लेते हैं, सो दीज आर फर्स्ट 10 पेजेस विच आर बीइंग रेफरेंस्ड. सो 2 6 1 5 then 7 7 7 7 5 1, these are the 10 pages. so delta की वैल्यू यहाँ 10 है. so in 10 इस 10 वैल्यू के लिए, डेल्टा की 10 वैल्यू के लिए these are the pages 1 2 5 6 and 7. so these are the 5 pages that are actively used together, so they form a locality. so that means इस particular time duration t1 के रिगार्डिंग हमारे पास फ्रेम्स मिनिमम 5 अवेलेबल होने चाहिए फ्रेम में हमारी मेन मेमोरी में, सो दैट ये पांचों के पांचों पेज एक साथ हम रैम में पुट कर सकें और क्रैशिंग ना हो. सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, सो ये वाले 10 पेजेस हमने पिक किए हैं यहाँ 3 से लेके इस 4 तक. सो ये भी हमने 10 वैल्यूज 10 पेजेस लिए हैं, तो डेल्टा की वैल्यू हमने 10 फिक्स रखी है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे जो वर्किंग सेट बनेगा टाइम t2 के लिए, सो इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में हमारे पास 2 ही पेजेस यूज हो रहे हैं बार बार 3 और 4. सो दैट मीन्स अगर मैं t1 की बात करूं, सो इस टाइम पर मेरे पास इस प्रोसेस के लिए 5 फ्रेम्स अवेलेबल होने चाहिए मेरी मेन मेमोरी में. लेकिन कुछ टाइम के बाद जो लोकेलिटी है वो चेंज हो गई. नाउ इंस्टेड ऑफ 5 फ्रेम्स ओनली 2 फ्रेम्स आर रिक्वायर्ड इन द मेन मेमोरी फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोसेस. सो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन कौन से पेजेस रेफरेंस होंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारी लोकेलिटी चेंज होती रहेगी. सो लोकेलिटी सिंपली मीन्स सेट ऑफ पेजेस दैट आर एक्टिवली यूज्ड टुगेदर, और वर्किंग सेट भी एक सेट ही है जो हमें क्या बता रहा है कि नंबर ऑफ डिफरेंट पेजेस जो उस पर्टिकुलर डेल्टा की वैल्यू के अकॉर्डिंग यूज होंगे. तो यहाँ पर मेरे पास 5 यूनिक पेज यूज होंगे, यहाँ पर मेरे पास 2 ही यूनिक पेजेस यूज होंगे. सो दैट मीन्स जब ये प्रोसेस सपोज एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा t1 टाइम पर, हमारे पास मेन मेमोरी में इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए 5 फ्रेम्स रिजर्व होने चाहिए, और कुछ टाइम बाद जब ये टाइम t2 के लिए एग्जीक्यूट होगा तब हमें 5 फ्रेम्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तब हमें 2 फ्रेम से ही हमारा काम चल जाएगा, बिकॉज उस टाइम पर जो लोकेलिटी है वो 2 के इक्वल है. सो दिस इज व्हाट ऑल दिस कंसेप्ट इज सेइंग, एंड the accuracy of this working set model totally depends upon this value of delta. तो हम डेल्टा की वैल्यू क्या चूज करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और अगर हम डेल्टा की वैल्यू बहुत ही स्मॉल चूज कर लेंगे सो ये पूरी लोकेलिटी को कवर नहीं कर पाएगा, और अगर हमारा डेल्टा बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगा तो इसमें बहुत सारी लोकेलिटीज़ मिक्स हो जाएंगी. सो दिस इज़ द ओवरऑल concept of working set model. So here we form the window. So this entire scenario, this and complete
10 values are forming a window. So working set window 1, working set window 2. So this is how we used to form the concept. So the most important concept here is size, and here you can see the working set size, total demand frame. So D is equals to total demand for the frames, and if D is greater than M, so यहाँ पर M क्या है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स हैं. सो हम M हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स हैं, तो अगर हमारी डिमांड टोटल नंबर ऑफ फ्रेम से ज़्यादा हो जाएगी, सो इन दैट पर्टिकुलर केस थ्रेशिंग होगी. और जब भी ये सिचुएशन आएगी तो उस केस में हम क्या करेंगे, या तो किसी प्रोसेस को सस्पेंड या टर्मिनेट कर देंगे, या फिर किसी प्रोसेस के पेजेस को स्वैप आउट करेंगे, सो दैट हमारे पास उतने नंबर ऑफ अवेलेबल frames मिल सके. So this is the overall concept of working set model. And the last, another way of preventing the thrashing is page fault frequency, which is much better approach than working set model. It is more direct approach than working set model. So basically हमें पता है कि जब भी thrashing होगी तो हमारे पास high page fault rate होगा. So जब भी हमारे पास हाई पेज फॉल्ट रेट है तो उसका मतलब क्या है, दैट द प्रोसेस नीड्स मोर फ्रेम्स इन द मेन मेमोरी, एंड इफ पेज फॉल्ट रेट इज टू लो, सो इन दैट पर्टिकुलर केस हमें पता है कि प्रोसेस के पास इनफ नंबर ऑफ फ्रेम्स हैं, तभी हमारे पास कम पेज फॉल्ट हो रहा है. सो बेसिकली ये पेज फॉल्ट फ्रीक्वेंसी पर बेस्ड है. सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर थ्रेशिंग हो रही है तो पेज फॉल्ट रेट बहुत हाई होगा. पेज फॉल्ट रेट अगर बहुत हाई है तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर प्रोसेस को ज़्यादा फ्रेम्स चाहिए मेन मेमोरी में, और अगर पेज फॉल्ट रेट कम है या एवरेज है, सो दैट मीन्स उस प्रोसेस के पास इनफ नंबर ऑफ फ्रेम्स हैं हमारे पास. सो पेज फॉल्ट फ्रीक्वेंसी के केस में वी यूज टू सेट एन अपर बाउंड लिमिट एंड लोअर बाउंड लिमिट ऑन द पेज फॉल्ट रेट. सो जब भी हमारे पास पेज फॉल्ट रेट इस लोअर लिमिट से नीचे चला जाएगा, सो हम क्या करेंगे, वी रिमूव अ फ्रेम फ्रॉम द प्रोसेस. दैट मीन्स हमारे पास इनफ नंबर ऑफ फ्रेम्स हैं तो उस प्रोसेस से हम फ्रेम हटाकर किसी और प्रोसेस को एलोकेट कर देंगे. एंड सिमिलरली इफ पेज फॉल्ट रेट एक्सीड्स द अपर लिमिट, अगर वो अपर लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तब हम उस प्रोसेस को क्या करेंगे, और फ्रेम्स एलोकेट कर देंगे. सो इन दिस पर्टिकुलर वे वी विल बी एबल टू प्रिवेंट द crashing. So this is all about this chapter number 9, and I'm just stopping here myself for today's lecture. And the entire syllabus of your OS जो आपका T3 में आना है, so that is